हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और अब हम आगे की पढ़ाई करते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर स्टार्ट किया था, 2 वीडियोस हो चुके हैं। और इसके बाद हमने आपको कुछ ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर ए में इतने हैं बी में इतने हैं तो ए क्रॉस बी में कितने आएंगे, ए क्रॉस बी लिखा कैसे जाता है, अगर ए में और बी में इतने एलिमेंट्स कॉमन है तो कितने एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में कॉमन होंगे, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कॉमन होंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक, आप लोग प्लीज वीडियो नोट्स पिछले 2 वीडियोस के रिवाइज करके ही इन वीडियोस को देखा करिए। और इस वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस द एक्सरसाइज 2.1। so I hope you all must have attempted the exercise. So let's start with question number 1. I've written 2 questions, question number 1 and question number 2 on the board. Question number 1 says if x by 3 plus 1 comma y minus 2 by 3 is equal to 5 by 3 comma 1 by 3. Find x and y. You have to find x and y if this ordered pair given है आपको कि x by 3 plus 1 comma y minus 2 by 3 is equal to 5 by 3 comma 1 by 3, and it is asking you to find the value of x and y. We know that for equality of ordered pairs, both the corresponding elements should be equal to both corresponding elements of the other ordered pair. Means the 2 elements in this order of this ordered pair should be equal to the 2 elements of this ordered pair in the same order. Means this should be equal to this and this should be equal to this. For equality of ordered pairs it is very simple. आपको क्या करना है, इसको इससे इक्वेट करना है, इससे इसको इक्वेट करना है। 2 वेरिएबल्स हैं, 2 इक्वेशंस चाहिए ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, since both ordered pairs are equal, therefore we can say that x by 3 plus 1 should be equal to 5 by 3 and y minus 2 by 3 should be equal to 1 by 3. So from here you will get x by 3 should be equal to 5 by 3 minus 1, or x by 3 is equal to 5 minus 3 by 3, or 3 gets cancelled, you get x is equal to 2. Here you will get x is equal to y is equal to, this goes to the other side, 1 by 2 plus 1 by 3 plus 2 by 3, y is equal to 2 plus 1, 3 by 3 is equal to 1. So the ordered pair x comma y is equal to what? 2 comma 3. Let me check the answer. वैसे तो इसमें आंसर चेक करने की कोई जरूरत है नहीं, but still to be on the safer side 2 comma 1. This is the answer for first question. Simple ordered pairs equality, nothing to do. First element should be equal to the first element of the second ordered pair. Second element of the first ordered pair should be equal to second element of the second ordered pair. So okay, first question done. Let's move on to the next question. Question number 2 is direct formula based. It is asking you to say, find if A has 3 elements, a set A is given to you which is containing 3 elements, and there is another set which is given it to you in the roster form. ये सेट आपको रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है। तो रोस्टर फॉर्म में हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि एलिमेंट्स क्या हैं। We are only concerned about the number of elements because the question is asking to find the number of elements in A cross B. हमें A cross B लिखना नहीं है, हमको केवल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। तो NA solution NA is equal to what? 3. NB is equal to 3. Number of elements in B is also 3. Therefore number of elements in A cross B क्या होता है, हमने आपको बताया था कि if A has P elements, B has Q elements, then A cross B has P into Q elements. This becomes 3 into 3 which is equal to 9. अगर आपको संतुष्टि नहीं है और आपको लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा फॉर्मूला बेस्ड नॉलेज पे डिपेंडेंट है, तो लेट्स चेक इट आउट। क्रॉस चेक कर रहे हैं हम केवल आपकी तसल्ली के लिए। लेट्स क्रॉस चेक इट। क्रॉस चेकिंग हमेशा कॉन्फिडेंस देती है। लेट्स राइट डाउन दिस
लेट सेट, अब सेट ए तो दिया नहीं है, लेट सेट ए इज इक्वल टू ए बी एंड सी। तो ए क्रॉस बी जब हम लिखने जाएंगे तो ए का पहला एलिमेंट A3 के साथ पेयर करेगा, A4 के साथ पेयर करेगा, A5 के साथ पेयर करेगा, 3 एलिमेंट्स आए। फिर B3 के साथ करेगा, B भी 4 के साथ करेगा, B भी 5 के साथ करेगा, फिर C3 के साथ करेगा, C4 के साथ करेगा एंड C5 के साथ करेगा। लेट्स काउंट, सबके हमने पेयरिंग कर दी, 3 3 3 6 9। ठीक, तो चलिए, वी हैव ऑलरेडी confirmed that this is the correct answer. Total number of elements in A cross B will be equal to 9. चलिए, let's move on to the second question. I am not pausing the video because the question is very small. Question number 3 says, you have been given two sets. If G is equal to 7,8 and H is equal to 5, 4 and 2, you have to find what? G cross H and H cross G. सिंपल, हम लोग तो 3 4 4 के सेट्स कर चुके हैं ना, ये तो 2 का ही है। लेट्स डू इट। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज सेइंग you have to find G cross H and H cross G given 7 8 and is set G and 5 4 2 is set H. Let me check the sets again. गलत तो नहीं नोट कर दिया, क्वेश्चन क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी होता है। 7 8 एंड 5 4 2। लेट्स स्टार्ट। G क्रॉस H आंसर, इसमें सीधा हम आंसर से लिखेंगे। लेट्स स्टार्ट पेयरिंग। पहला एलिमेंट किससे आएगा? देखिए, डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए। G क्रॉस H मींस व्हाट? एवरी ऑर्डर्ड पेयर x, y सच दैट x बिलोंग्स टू G एंड y बिलोंग्स टू H। किससे पहला एलिमेंट आएगा? G से। दूसरा एलिमेंट H से। डेफिनेशन एकदम क्लियर याद रहनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो पहले इसका एलिमेंट आना है, तो चलिए इसका एक एलिमेंट हमने 7 उठाया, इसके हर एक साथ के साथ पेयरिंग करनी है। तो 7 की हमने 5 के साथ की, 5 यूज हो गया। 7 की हमने 4 के साथ की, यूज हो गया। 7 की हमने 2 के साथ कर दी। अब इसके सारे एलिमेंट्स के साथ 7 की पेयरिंग हो गई है। फिर तो चलिए, अब नेक्स्ट एलिमेंट 8 की पेयरिंग हमने 5 के साथ की, 8 की पेयरिंग हमने 4 के साथ की और 8 की पेयरिंग हमने 2 के साथ की। इसके सारे एलिमेंट्स के साथ पेयर हो गए। Means are we left with any other elements? No, we are not left with any other elements. So this is our G cross H. Number of elements कितने हुए इसमें? G cross H में काउंट करते हैं, 2 3 4 5 6। और अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला से भी कैलकुलेट करें तो इसमें कितने एलिमेंट्स? 2, इसमें कितने एलिमेंट्स? 3। तो 3 into 2 6। चलिए, H क्रॉस G पे आते हैं। H क्रॉस G will say H cross G is equal to all the ordered pairs x, y such that x belongs to H and y belongs to G. अब देखिए, दोनों अगल बगल लिखे हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो यू कैन ऑलवेज राइट yx यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ रिमूविंग द कंफ्यूजन, कि अब हम yx के ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएंगे जिसमें कि y H का एलिमेंट हो और x G का एलिमेंट हो। ठीक, चलिए लेट्स स्टार्ट। H के एलिमेंट्स हम उठाना चालू करते हैं। H का 5 उठाया, इसके हर एलिमेंट से पेयर करिए। 5 7 5 8, 5 की पेयरिंग हो गई। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एलिमेंट 4 4 7 4 8, 4 की भी पेयरिंग हो गई। नेक्स्ट एलिमेंट 2 2 7 एंड 2 8, खत्म, सबकी पेयरिंग कर दी। कितने एलिमेंट्स है? 2 2 4 2 6, टोटल 6 एलिमेंट्स। एंड G क्रॉस H और H क्रॉस G इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं, तो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम ही होंगे। ठीक, तो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। देखते हैं अगला क्वेश्चन कितना लेंदी है। अगर बहुत लेंदी नहीं होगा तो राइट, नहीं लेंदी है तो गिव मी सम टाइम टू क्लियर द बोर्ड एंड राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द बोर्ड। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, वेरी लेंदी क्वेश्चन रिटन ऑन द बोर्ड। क्वेश्चन बहुत लेंदी है, क्वेश्चन का आंसर बहुत छोटा है। मतलब कहते हैं ना कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, क्वेश्चन इतना बड़ा, आंसर इतना सा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हैव बीन गिवन 3 स्टेटमेंट्स, देयर आर 3 स्टेटमेंट्स रिटन ऑन द बोर्ड 1 2 and 3. You have to first analyze these statements, find out whether the given statement is true or false.
क्या वो गिवन स्टेटमेंट सही है या गलत है, पहले तो आपको ये एनालाइज करना है। उसके बाद आपको अगर स्टेटमेंट सही है तो कुछ नहीं है, यू गिव द आंसर एंड प्रोसीड फॉरवर्ड। अगर स्टेटमेंट गलत है देन यू हैव टू रीराइट दैट स्टेटमेंट एज करेक्ट। व्हाट शुड बी द करेक्ट स्टेटमेंट, ये आपको देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 ये कह रहा है कि इफ P is a set containing two elements Mn and Q is a set containing two elements Nm, then what is P cross Q? That is Mn and Nm। क्या ये सही है? तो देखिए सॉल्यूशन फर्स्ट, ये पहली बात तो फॉल्स हो गया। फॉल्स क्यों हो गया? बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे सीधे जो दिखता हुआ रीजन है, ए पी में कितने एलिमेंट्स 2, क्यू में कितने एलिमेंट्स 2, तो पी क्रॉस क्यू में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए 4, 2 into 2 4, इसमें कितने हैं 2, मींस दिस सेट इज मिसिंग 2 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स इसमें से मिसिंग है। स्टेटमेंट इज फॉल्स। करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट स्टेटमेंट आपका होगा कि इफ P is equal to M comma N and Q is equal to N comma M, then P cross Q is equal to what? M की पेयरिंग, P cross Q लिख रहे हैं तो पहला एलिमेंट M से उठाना है, तो M N पहला एलिमेंट, दूसरा M M, ठीक। अब N की पेयरिंग करिए, N N and N N। इन ऑर्डर्ड पेयर्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता है, मतलब कौन सा ऑर्डर्ड पेयर कहां लिखा है आपने, इट डजंट मैटर, लेकिन इसके अंदर जो एलिमेंट्स लिखे हैं उनका ऑर्डर चेंज नहीं करना है। ये Mn है तो Nm मत करिएगा, ठीक। ऑर्डर्ड पेयर्स में प्लेस ऑफ द एलिमेंट रिटन इनसाइड द ऑर्डर्ड पेयर इज इंपॉर्टेंट, ठीक। तो चलिए, वैसे ये सेट ऐसा है कि इसमें आप नंबर चेंज भी कर देंगे, सबको पलट भी देंगे तब भी सेम ही सेट मिलने वाला है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट स्टेटमेंट विच विल बी ट्रू। यहां 2 एलिमेंट्स मिसिंग है, कौन कौन से, MM एंड NN। चलिए सेकंड स्टेटमेंट, लेट्स रीड इट आउट। सेकंड स्टेटमेंट सेज इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट, अगर A और B नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, देन A क्रॉस B इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। पहले तो इसी को चेक कर लें कि अगर A और B नॉन एम्प्टी सेट है तो A क्रॉस B नॉन एम्प्टी होगा, डेफिनेटली होगा। हमने आपको लिखवाया था कि अगर A और B में से कोई भी एक एम्प्टी हो गया तो A क्रॉस B एम्प्टी सेट बन जाएगा, ठीक। लेकिन अगर इसमें दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स हैं तो A क्रॉस B भी नॉन एम्प्टी सेट ही होता है। उसके बाद उसने कहा कि the set of ordered pairs x, y such that x belongs to A and y belongs to B। तो A क्रॉस B है तो पहला एलिमेंट कहां से लिया जाएगा, A से, दूसरा एलिमेंट कहां से लिया जाएगा, B से, और ऑर्डर्ड पेयर x y, ठीक। वेरी गुड, ये तो ऑर्डर्ड पेयर क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन ही लिखी हुई है, वेरी गुड, वेल एंड क्लियर। तो स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। स्टेटमेंट 3, अब इसको रीराइट करने की जरूरत नहीं है, जो सही है उसको क्या आप रीराइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 सेज कि इफ A इज इक्वल टू 1, 2, सेट A में 1, 2 एलिमेंट्स हैं, सेट B हैज 3, 4, ठीक। फिर उसने बोला कि देन A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5। तो B इंटरसेक्शन 5 क्या है, B इंटरसेक्शन 5 का आप किसी भी चीज के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो 5 ही आएगा, यूनियन लेंगे तो वही सेट आता है। तो यहाँ इंटरसेक्शन लिया गया है तो रिजल्ट क्या 5 आया। दिस इंप्लाइज दैट A क्रॉस 5 आपको यहाँ लिखा हुआ है और लिखवाया गया था स्टेट स्पेसिफिकली। और वैसे भी जब इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है तो पेयरिंग किससे करोगे, किसी से आप नहीं कर सकते। इट मींस A क्रॉस 5 शुड बी इक्वल टू 5। तो स्टेटमेंट 3 इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड एंड राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द बोर्ड, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं वो आपके बोर्ड पे लिखे हुए, क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th। क्वेश्चन नंबर 5th सेज कि अगर आपको एक सेट दिया हुआ है A -1, 1, आपको यू हैव टू फाइंड A क्रॉस A। अब देखिए इसमें A क्रॉस A हमेशा लिखना डायरेक्टली गलत हो जाएगा। डायरेक्टली गलत हो जाएगा मतलब आप जल्दी से ढूंढ नहीं पाएंगे, मतलब मैनेज नहीं कर पाएंगे कि 3 ऑर्डर्ड पेयर्स किसकी आपने किसके साथ पेयरिंग की है या नहीं की है। तो हम आपको ऑलवेज सजेस्ट करेंगे कि फर्स्ट यू राइट A क्रॉस A,
देन यू टेक क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए। अब उसके बाद बस ये ब्रैकेट नहीं लिखना है हमको, ये ध्यान रखना है कि ए क्रॉस ए लिखा, फिर उसके बाद जब ए क्रॉस इसका इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट लीजिए तो ये ब्रैकेट हटा दीजिएगा, ठीक। उसके बाद बाकी सब सेम है। तो ए क्रॉस ए पहले लिखते हैं हम। तो ए क्रॉस ए इज, इसका पहला एलिमेंट उठाइए -1 और इसकी पेयरिंग दोनों के साथ कर दीजिए। तो -1 एंड -1 1 पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट 1 हुआ, उसकी पेयरिंग दोनों के साथ करिए -1 एंड 1 एंड 1। ये आपका ए क्रॉस है, इसमें 2 एलिमेंट्स थे तो ए क्रॉस ए में 4 एलिमेंट्स होंगे। वेरी गुड। चलिए अब ए क्रॉस का प्रोडक्ट ए क्रॉस ए के साथ लेते हैं। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ लेना है, ब्रैकेट्स नहीं लिखना है, बस ये ध्यान रखिएगा। लेट्स स्टार्ट विद, इसका पहला एलिमेंट उठाइए और इसके साथ पेयरिंग करिए। तो पहला एलिमेंट -1 -1 ठीक। दूसरा एलिमेंट -1 की पेयरिंग इसके साथ -1 एंड 1। पहला एलिमेंट हम इसका लिख रहे हैं और बाकी दोनों एलिमेंट्स इसके लिख रहे हैं, -1 1 एंड -1, देन -1 1 एंड 1। कितने एलिमेंट्स हो गए? 1 2 3 4। अब दूसरा एलिमेंट 1 की पेयरिंग इन सब के साथ करिए। तो 1 -1 -1 1 एंड 1 इसके साथ करेंगे तो 1 1 एंड -1 एंड इसके साथ करेंगे तो 1 एंड 1। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो इसमें से कोई भी 2 ऑर्डर पेयर सेम नहीं दिखेंगे आपको। कैसे? इसमें तीनों नेगेटिव, इसमें पहले के 2 नेगेटिव। अब तीनों नेगेटिव वाला कोई और नहीं है, पहले के 2 नेगेटिव वाला नहीं है, फर्स्ट और लास्ट नेगेटिव ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। पहला नेगेटिव, बाकी दोनों पॉजिटिव, नो। फिर उसके बाद इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि हर एलिमेंट एक दूसरे से अलग है। तो ये हुआ आपका ए क्रॉस ए। लिखना सिंपल है, पहले ए क्रॉस ए लिखिए, फिर ए का क्रॉस प्रोडक्ट इसी के साथ ले लीजिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सेज कि इफ ए क्रॉस बी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर ए क्रॉस बी की वैल्यू ए एक्स है, बी ए वाई है, बी एक्स है, बी वाई है, तो ए क्रॉस बी, ए एंड बी में, ए और बी आपको सेपरेटली फाइंड आउट करना है। तो देखिए, एक तो ऑब्जर्वेशन से ही आप कह सकते हैं कि भैया पहले एलिमेंट्स ए से आ रहा होगा, तो ए में कौन कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं? ए बी बी। क्या क्या आया? ए बी। रिपीटिशन तो अलाउड नहीं होता है या इमेटेरियल होता है, आप ए बी लिखिए चाहे ए बी लिखिए। अब बी की बात करते हैं, एक्स वाई, क्या आया? एक्स वाई, ये भी मिल गए। दूसरी चीज ये भी है बच्चों कि आप ये भी कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं? एन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 4। 4 के प्राइम फैक्टर्स करिए, क्या आएगा? 1 into 4, 2 into 2 या 4 into 1। यही 2 पॉसिबिलिटीज हैं जिसके केस में आपको ए क्रॉस बी में 4 एलिमेंट्स मिलेंगे। मतलब ए में 1 एलिमेंट हो, बी में 4 हो, ए में 2, बी में 2, ए में 4, बी में 1। ये पॉसिबल नहीं है और ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ए में सीधे आपको 2 टाइप के एलिमेंट्स दिख रहे हैं, उसी तरीके से बी में भी 2 टाइप के एलिमेंट्स दिख रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी बची? दोनों में 2 एलिमेंट्स होने चाहिए। इतना सोचने की वैसे जरूरत नहीं है, सिंपल। ए पहला एलिमेंट कहां से उठ रहा है? सेट ए से, तो सबको अलग अलग लिख लो। ए, फिर बी, फिर बी। ये 4 एलिमेंट सेट ए से आए हैं। अब ये चारों देखो तो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो मतलब ए से क्या क्या आया है? एक तो ए आया है, एक बी आया है। दूसरे एलिमेंट्स लिखिए, वो सेट बी से आ रहे होंगे, तो एक्स वाई फिर एक्स, सारे एलिमेंट्स लिख लीजिए जब अगर कंफ्यूजन आता है तो। और उसके बाद आप सेट बी लिख दीजिए। एक्स 2 बार आया है, हम एक ही बार लिखेंगे, वाई भी 2 बार आया, हम एक ही बार लिखेंगे, तो सेट ए और सेट बी मिल गया। ये मेथड हमेशा काम कर जाएगा, कभी आपको आंसर गलत नहीं देगा, ठीक है। तो ये हुए आपके 2 क्वेश्चंस, 5th एंड 6th। ठीक है बच्चों, गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड एंड राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, बट इसमें कुछ खास है नहीं। मतलब कॉन्सेप्चुअली या लॉजिकली आपको फंसाने वाली कोई चीज नहीं है। सीधे सीधे उसने कहा कि आपको 4 सेट्स दे दिए, ए बी सी और डी, और बोला
कि आप एक रिलेशन है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ क्रॉस ओवर इंटरसेक्शन और ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, ये दोनों आपको वेरीफाई करने हैं। तो वेरीफाई करना तो आसान है, सीधे सीधे सबकी वैल्यू लिखते जाइए। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट पार्ट, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी आपको लिखना है। तो ए इज व्हाट 1 2, बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, ठीक है बच्चों। तो अब बी इंटरसेक्शन सी लिखते हैं। बी इंटरसेक्शन सी देखिए बी सेट है 1 2 3 4, सेट सी है 5 6, तो इसमें तो देखिए कुछ कॉमन ही नहीं है, तो बी इंटरसेक्शन सी कितना आ गया 5 आ गया। तो हमें पता है कि किसी भी सेट का अगर आप 5 सेट के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो ए क्रॉस 5 इज इक्वल टू 5, ये तो 5 ही आना है। ए कुछ भी हो, किसी भी नॉन एम्प्टी सेट का अगर आप किसी एम्प्टी सेट के साथ अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको रिजल्ट 5 ही मिलेगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी देखते हैं। ए क्रॉस बी क्या है आपका, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, लेट्स स्टार्ट राइटिंग ए क्रॉस बी। 1 की पेयरिंग इन सबके साथ करिए तो 1 1 आया, 1 2 आया, 1 3 आया, 1 4 आया, ठीक। 2 की पेयरिंग करिए 2 1 आया, 2 2 आया, 2 3 आया, 2 4 आया। अब इधर कुछ नहीं बचा है ना, सबकी पेयरिंग हमने कर ली, ये आपका ए क्रॉस बी हो गया। अब ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी, अब ए का क्रॉस प्रोडक्ट लीजिए सी के साथ, तो इसके 1 2, इसका 5 6, तो 1 की पेयरिंग 5 के साथ, 1 की पेयरिंग 6 के साथ, अब 2 की पेयरिंग 5 के साथ, 2 की पेयरिंग 6 के साथ। ए क्रॉस बी लिखा, ए क्रॉस सी लिखा, कॉमन एलिमेंट्स ढूंढते हैं। 1 के साथ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 नहीं है तो ये नहीं मिलेगा। 1 के साथ 6 भी नहीं है, ये भी नहीं मिलेगा। 2 के साथ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ना तो 5 है ना 6 है। इसका मतलब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी कितना आ गया 5। तो इन दोनों को ऑब्जर्व करके हम ये कह रहे हैं कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी विच इज इक्वल टू 5। पहला रिजल्ट आपने प्रूफ कर दिया, ठीक। कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऑर्डर पेयर्स लिख देने हैं। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट ज्यादा आसान है। उसने कहा कि आपको ये प्रूफ करना है कि ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का सबसेट है। ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का सबसेट है। तो ए क्रॉस सी तो अभी हमने लिखा था पर हटा दिया गया, सेकंड पार्ट है। ए क्रॉस सी क्या होगा, ए का क्रॉस प्रोडक्ट सी के साथ लिखिए 1 5 1 6 2 5 एंड 2 6 हो गया। अब बी क्रॉस डी लिखिए, बी क्रॉस डी, बी के एलिमेंट्स उठाइए और डी, बाप रे बाप 4 4 16 एलिमेंट्स आएंगे। चलिए कोई बात नहीं, लिखते हैं। 1 की पेयरिंग सबके साथ करिए 1 5 1 6 1 7 1 8। 1 की पेयरिंग सबके साथ हो गई। अब 2 की पेयरिंग करिए 2 5 2 6 2 7 2 8। 2 की पेयरिंग हो गई। अब 3 की पेयरिंग करिए 3 5 3 6 3 7 3 8। अब आते हैं फोर्थ लास्ट एलिमेंट। 4 की पेयरिंग 5 के साथ, 4 की पेयरिंग 6 के साथ, 4 की पेयरिंग 7 के साथ एंड 4 की पेयरिंग 8 के साथ। दिस कंप्लीट्स बी क्रॉस डी। बी क्रॉस डी आपका कंप्लीट हो गया। लेट्स चेक ए क्रॉस सी और बी क्रॉस डी में कितने एलिमेंट्स कॉमन है। 1 5, यस 1 5 दोनों में है, 1 6 दोनों में है, 2 5 इसमें है, 2 6 मतलब बी क्रॉस ए क्रॉस सी के सिंस ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस सी आर ऑल्सो एलिमेंट्स of B cross D, therefore A cross C is a subset of B cross D.
हेंस प्रूव्ड, हमने दोनों स्टेटमेंट्स को वेरीफाई कर लिया। केवल आपको ये क्रॉस प्रोडक्ट्स लिखने अच्छे से सिंपली आने चाहिए, उसके बाद कोई टेंशन नहीं, ठीक है। गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड एंड राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 is written on the board. क्वेश्चन नंबर 8 says कि अगर एक सेट A है 1,2 और एक सेट B है 3,4, ये दो सेट्स हैं, तो आपको ये बताना है कि पहले तो A क्रॉस B लिखिए और फिर बताइए कि हाउ मेनी सबसेट्स विल A क्रॉस B हैव, और इन सबको आपको लिखना है। लेंदी क्वेश्चन है, नथिंग क्रिटिकल, कोई भी इसमें सोचने वाली बात नहीं है। सॉल्यूशन, NA कितना है 2, NB कितना है 2। अगर A में 2 एलिमेंट्स हैं, B में भी 2 एलिमेंट्स हैं, तो A क्रॉस B में कितने आएंगे, एंड A क्रॉस B विल बी इक्वल टू 2 into 2 विच इज इक्वल टू 4। और अभी हमने इसके पहले चैप्टर में पढ़ा था कि अगर एक सेट में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इफ n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो उसके सबसेट्स कितने बनते हैं 2 to the power n। therefore A cross B will have 2 to the power 4 equal to 16 subsets। 16 सबसेट्स बनेंगे। हमने आपको बताया था, फॉर्मूला लिखवाया था। फॉर्मूला क्या होता है कि if Na is equal to n, then A has 2 to the power n सबसेट्स, ठीक है, ये होता है। अब आगे बढ़ते हैं, लिखना है। उसने बोला कि टोटल जो ये 16 सबसेट्स आपने है ना, इनको लिखना है आपको। तो चलिए पहले तो A क्रॉस B लिखें। तो A क्रॉस B इज इक्वल टू व्हाट, 1 की पेयरिंग 3 के साथ, 1 की पेयरिंग 4 के साथ, 1 की होगी, 2 की पेयरिंग 3 के साथ, 2 की पेयरिंग 4 के साथ। A क्रॉस B लिख लिया। अब इसके हम सबसेट्स लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है। कितने एलिमेंट्स हैं टोटल? 4 एलिमेंट्स हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें 8 एलिमेंट्स मत काउंट कर लेना। एक ऑर्डर्ड पेयर, वही ऑर्डर्ड पेयर एक पूरा एक एंटिटी होता है, वो एक पूरा एलिमेंट होता है, और ये एलिमेंट एक ही काउंट होगा। ऐसा नहीं कि इसमें 2 नंबर्स लिखे हैं तो ये 2 अलग अलग काउंट होंगे, ठीक है। तो चलिए A क्रॉस B के सबसेट्स लिखना स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक एक एलिमेंट के सबसेट्स लिखेंगे, पहले एक एक एलिमेंट्स के सबसेट्स लिखेंगे। तो एक सेट आया 1 3, ठीक, दूसरा सेट 1 4, तीसरा सेट 2 3, चौथा सेट 2 4। ब्रैकेट के साथ आपको लिखना है, ये पूरा ऑर्डर्ड पेयर इसका एलिमेंट है। ऐसा नहीं कि 1 3 अलग से लिख दिया, फिर 2 एलिमेंट आ जाएंगे। इसमें कितने एलिमेंट्स हो गए? इसमें 2 एलिमेंट्स, ये गलत हो गया। हमें पूरा ऑर्डर्ड पेयर इसके सबसेट में लिखना है, इसके पूरा ऑर्डर्ड पेयर। ये कितने एलिमेंट्स के सबसेट हो गए? 2 एलिमेंट्स के, एक एक एलिमेंट्स के सबसेट हो गए। अब 2 एलिमेंट्स वाले लिखते हैं। तो 1 3 1 4, वो इसकी पेयरिंग इसके साथ करिए। 1 3 2 3, अब इसकी पेयरिंग इसके साथ भी कर दीजिए। तो ये आपका आ गया 1 3 एंड 2 4। अब इसकी पेयरिंग सबके साथ हो चुकी है, अब इसकी पेयरिंग करिए। तो 1 4, फिर 1 4 की 2 3 के साथ, 1 4 की 2 4 के साथ। अभी भी एक बचा हुआ है, किसका? इसकी सबके साथ हो गई, इसकी सबके साथ हो गई, इसकी अभी इसके साथ बाकी है। तो इसको हम लिखेंगे 2 3 2 4। कितने सबसेट्स लिख लिए हमने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख लिया हमने। 16 लिखने हैं, और मतलब 16 मतलब 6 और लिखने हैं। तो चलिए अब 3 3 के लिखते हैं। ये 3 1 3 1 4 2 3, ठीक। अभी ये छूटा हुआ है, अब एक एक को छोड़ के आपको 100 और भी लिखने हैं, एक एक को छोड़ के और भी लिखने हैं। तो
इसमें हमने कौन सा छोड़ा, 2 4 छोड़ा, अब हम 2 3 छोड़ते हैं, तो ये आपका आएगा 1 3 1 4 और 2 4। अब 1 4 छोड़ देते हैं तो ये आपका आएगा 1 3 2 3 एंड 2 4। अब 1 4 छोड़ लिया, अब 1 3 को छोड़ लेते हैं एक बार, तो ये आपका आएगा 1 4 2 3 एंड 2 4। ये 3 3 के हो गए। अब एक और सेट बचा हुआ है, कौन सा, चारों वाला, तो 1 3 1 4 2 3 एंड 2 4। अब काउंट करते हैं कितने एलिमेंट्स हो गए, 1 सेट 2 सेट 3 सेट 4 सेट 5 सेट 6 सेट 7 सेट 8 सेट 9 सेट 10 11 12 13 14 15। एक अभी और बाकी है, बताओ कौन सा सेट है, बताइए कौन सा सेट है, वो है आपका 0 एलिमेंट वाला 5। टोटल 16 सेट लिख लिए हमने। 0 एलिमेंट वाला लिखना जरूरी है, देखिए अगर उसको नहीं लिखेंगे तो काउंटिंग पूरी नहीं होगी। तो 0 का 1 1 2 3 4, इसके 6 और इसके 4 और इसका 1, तो टोटल 16 सेट्स हमने लिख दिए। इसको लिखने में ही बेसिकली पेशेंस की जरूरत है, वैसा कोई ट्रिक नहीं है। पहले एक एक एलिमेंट आपने उठाए, फिर 2 2 की पेयरिंग की, फिर 3 3 की पेयरिंग की, फिर 4 4 की पेयरिंग की। देखिए जब 2 2 की पेयरिंग करिएगा तो एक की पेयरिंग इन दोनों के एक एक के साथ करते जाइए, फिर इसको फिक्स करके बाकी तीनों चेंज कर दीजिए, फिर इसको फिक्स करके बाकी दोनों चेंज कर दीजिए, फिर इसको फिक्स करके बाकी दोनों चेंज। लेकिन जब 3 3 की पेयरिंग करिएगा ना तो छोड़ते जाइएगा। किसको छोड़ा, इसको छोड़ेंगे तो 1 3 का बनेगा, इसको छोड़ेंगे तो 1 3 का बनेगा, इसको छोड़ेंगे तो 1 3 का बनेगा, और इसको छोड़ेंगे तो 1 3 का सेट बनेगा। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर, आई थिंक दिस इज डन। हाँ, सो हाउ मेनी सबसेट्स, 16 एंड लिस्ट द एलिमेंट्स इन, लिस्ट द सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B। गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, A and B are two sets such that NA मतलब number of elements in A is 3, NB is number of elements in B is 2, और आपको 3 ऑर्डर्ड पेयर्स दिए हुए हैं, 3 ऑर्डर्ड पेयर्स दिए हुए हैं, x, 1 A क्रॉस B contains x, 1 y, 2 एंड z, 1। अब ये नहीं कह रहा है कि A क्रॉस B यही है, वो कह रहा है कि A क्रॉस B कंटेन्स, A क्रॉस B आर कंटेन्स दीज 3 एलिमेंट्स आर इन A क्रॉस B। और भी एलिमेंट्स होंगे, बाकी उसने नहीं दिए हैं, बाकी उसने नहीं दिए हैं। उसने बोला कि A क्रॉस B में ये 3 एलिमेंट्स हैं। अब वो ये कह रहा है कि यू फाइंड A एंड B। ये भी उसने कह दिया कि एक्स वाई जेड डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, एक्स वाई जेड एकदम अलग है, सेम नहीं हो सकते। तो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन। हमको कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स दिए हैं, पूरा A क्रॉस B नहीं दिया हुआ है, पूरा A क्रॉस B नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको A और B लिखना है। तो चलिए, एन ए कितना है 3, एन बी कितना है 2, मतलब सेट ए में आपके 3 एलिमेंट्स होने चाहिए और सेट बी में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, लिखते हैं। पहला एलिमेंट कहां से आ रहा होगा, ए क्रॉस बी है ना, तो पहला एलिमेंट ए से आ रहा है, तो ए में कौन कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए, सबको लिख दीजिए, एक्स वाई और जेड। ठीक, क्या कुछ रिपीटिशन है, नहीं। कितने एलिमेंट्स होने चाहिए थे, 3, तो पहले तीनों एलिमेंट्स मिल गए आपको, यही तीनों आपके एक्स वाई जेड हैं, लिख दीजिए एक्स वाई जेड, यही एक सेट ए के एलिमेंट्स हैं। सेट बी की बात करते हैं, तो सेट बी में हमने कहा कि इन ऑर्डर्ड पेयर्स में आया हुआ दूसरा एलिमेंट सेट बी का होगा, दूसरा एलिमेंट सेट बी का होगा। तो दूसरा एलिमेंट क्या है, 1 है, 2 है, 1 है। तो देखिए इसमें रिपीटिशन है ना, यस। तो सेट बी में 1 आए डेफिनेटली आया होगा, 2 डेफिनेटली आया होगा, और क्योंकि सेट बी में बस 2 ही एलिमेंट्स हैं, वो दोनों हमने ढूंढ लिए, तो यही हमारा आंसर हो गया। सेट ए इज एक्स वाई जेड, सेट बी इज 1 and 2। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 10th, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज 2.1 इज रिटन ऑन द बोर्ड एंड दिस इज अ वेरी वेरी स्वीट एंड डिसेंट क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है, बहुत कैलकुलेटिव भी नहीं है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स हैं। सॉल्यूशन, लेट्स स्टार्ट एनालाइजिंग।
पहले क्वेश्चन को समझते हैं। ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 9 एलिमेंट्स, और उसके 2 एलिमेंट्स दिए गए हैं। 2 एलिमेंट्स दिए गए हैं। आपको फाइंड करना है कि सेट ए है क्या। फाइंड सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए, मतलब सेट ए पहले फाइंड करो, फिर ए क्रॉस ए पूरा लिखो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एन ए क्रॉस ए कितना है? एन ए क्रॉस ए 9 दिया हुआ है। लेट एन ए इज इक्वल टू एक्स, लेट एन ए इज इक्वल टू एक्स, देयरफॉर एन ए क्रॉस ए कितना आना चाहिए? इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज एक्स। ए क्रॉस ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें x है, इसमें x है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन, विच इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 3। कोई ये मत कहना कि -3 क्यों नहीं लिया भैया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नेगेटिव नहीं होते हैं, -3 नहीं लेना है यहाँ पे। विल बी टेकिंग द ओनली पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 9। ठीक, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना आ गया? एन ए इज इक्वल टू 3 आ चुका है, मतलब ए में 3 एलिमेंट्स हमें ढूंढने हैं। अब ये बताओ, जब आप ए क्रॉस ए लिख रहे होंगे, व्हेन यू आर गोइंग टू राइट ए क्रॉस ए, इट कंटेन्स -1 एंड 0 एंड 0 एंड 1, और कुछ एलिमेंट्स हैं, टोटल 9 एलिमेंट्स हैं, वो तो आएंगे ही। इसमें ए से 3 एलिमेंट्स ढूंढने हैं आपको। ये बताइए पहले एलिमेंट्स कहां से आ रहे हैं? पहले एलिमेंट्स सेट ए से आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने कहा भाई सेट ए लिखते हैं हम, पहले सारे एलिमेंट्स सेट ए से आए, इधर ही कहीं लिखते हैं, पता नहीं उधर दिखाई देगा कि नहीं दिखाएगा। सेट ए, हर एलिमेंट सेट ए से आया है, पहला एलिमेंट, इसका मतलब -1 और 0 ये तो सेट ए में है ही है। अब दोनों एलिमेंट्स हमने लिख लिए। अब सेट दूसरा एलिमेंट किससे आ रहा है? वो भी सेट ए से ही आ रहा है, वो भी सेट ए से ही आ रहा है। तो दूसरे एलिमेंट्स का सेट लिखिए 0 एंड 1। ये रिपीट कर गया ना, तो इसका मतलब ये नंबर 2 बार नहीं, एक ही बार, लेकिन 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स मिल गए, 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स मिल गए। तो क्या यही हमारा सेट ए है? यस, -1, 0 एंड 1 इज योर सेट ए। अब सेट ए मिल गया तो ए क्रॉस ए लिख लो। ए क्रॉस ए क्या लिखेंगे? इसी की पेयरिंग इसके साथ करना है, तो -1 की पेयरिंग -1 के साथ, -1 की पेयरिंग 0 के साथ, -1 की पेयरिंग 1 के साथ। अब 0 की पेयरिंग करिए, 0 की पेयरिंग -1 के साथ, 0 की पेयरिंग 0 के साथ, 0 की पेयरिंग 1 के साथ। अब 1 की पेयरिंग करिए, 1 की पेयरिंग -1 के साथ, 1 की पेयरिंग 0 के साथ एंड 1 की पेयरिंग 1 के साथ। ये वो टोटल 9 एलिमेंट्स हैं जो ए क्रॉस ए में होने चाहिए, जिसमें से कौन कौन सा आपको दिया हुआ है? -1, 0 ये एलिमेंट आपको दिया गया, और 0, 1 ये एलिमेंट आपको दिया गया। बाकी के रिमेनिंग 7 एलिमेंट्स ये हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, दिस कंप्लीट्स द डिस्कशन ऑफ एक्सरसाइज 2.1। ठीक है बच्चों, तो ये हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में विल बी स्टार्टिंग विद रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो प्लीज कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग, और हाँ प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और दूसरी चीज, इस वीडियो के बाद एक्सरसाइज डेफिनेटली एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, नोट्स रिवाइज कर लीजिएगा। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।